अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, we are going to start mathematics 10th class, unit number 1. In this chapter, we will basically study the different methods used to find out the solution set of a quadratic equation, and we will also study different type of equations which are basically not quadratic equation, but we can resolve it, change it to a quadratic equation, and by using the methods uh, of a quadratic equation and calculate its solution. So what is a quadratic equation? Quadratic equation is any equation of the form x square plus bx plus c equal to 0 where a must not be equal to 0. कोई भी इक्वेशन अगर हमें इस फॉर्म में मिल जाए तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देंगे. अच्छा, and in such type of an equation a will not be equal to 0. इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एनी पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देंगे. द डिग्री ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू 2 और वो पोलिनोमियल भी होना चाहिए. बाय पोलिनोमियल आई मीन दैट the power of all the variables in an equation must be a whole number. नेगेटिव में पावर नहीं होना चाहिए, पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए, तो उसको हम तब जाके पोलिनोमियल का नाम देंगे. सो एनी पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square plus bx plus c is equal to 0. A and b are coefficients. Coefficients are multiplied or divided. The variable is divided or multiplied by coefficient. जो वेरिएबल के फ्रंट में जो हमारे पास बिल्कुल वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको हम कोफिशेंट्स का नाम देंगे. x in this case is a variable and c is constant. So in this quadratic equation we have coefficients which is a, b, x which is a variable and c is a constant term. तो अब यहाँ पे a must not be equal to 0, b 0 हो सकता है, ये पूरा टर्म 0 हो सकता है, ये पूरा टर्म 0 हो सकता है और ये दोनों भी 0 हो सकते हैं. तब भी हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देंगे. फॉर एग्जांपल 2x square is equal to 0. This is again a quadratic equation. 2x square plus 5 is equal to 0. In this case, this term is equal to this term we have considered as 0, so we get this equation. Similarly, we can write 2x square plus 5x is equal to 0. This is again a quadratic equation in which the constant term is considered as 0. लेकिन इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम नहीं दे सकते बिकॉज इट हैज़ नो क्वाड्रेटिक टर्म, इट हैज़ नो x square term. So the degree of this equation now becomes 1. So this is now called as a linear equation. So we must have
a quadratic term in any quadratic equation. अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी ग्राफ ड्रा करने के लिए आपके पास वो जो इक्वेशन है उसकी x और y की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। लेट्स सपोज दिस इज अ quadratic equation. अब I am trying to draw its graph. This is x-axis, this is y-axis. So for this I am going to define the values of x, y in terms of x to calculate it using this equation. When we put in this equation x is equal to 0, we get 0 square is equal to 0, 0 plus 2 into 0, 0, 0 plus 0, 0 plus 1, we get 1. Similarly, when we put 1, so 1 square 1 plus 2 into 1, 2, 3, we get 4. When we put minus 1, we get minus 1 square, we get 1 plus 2 into minus 1, minus 2. So minus 2 plus 1, minus 1, and plus 1, we get 0. Similarly, if we put minus 2, we get 4, minus 2 square 4 plus minus 4, we get plus 1. If we put minus 3, so we get 9 minus 6, 3, we get again 4. Now we are going to plot all these values. This is, let's suppose, 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Similarly, 1, 2, 3, 4, 5. For this is the central point, it is basically the 0 point भी इसको कह सकते हैं, center इसको कहा जा सकता है. So for 0 we get 1. So across x axis we have x is equal to 0. So for this value we get y is equal to 1. Now for 1 we get x is equal to 4. Similarly, for minus 1 we get x is equal to 0. So this is minus 1 x, y is equal to 0. So we plot this point. Similarly, for minus 2 we get x is equal to 1. So minus 2, y is equal to 1. Similarly, for minus 3 we get y is equal to 4. Minus 3 and 4. Now इसको हम आपस में मिला लेते हैं. So we get this graph. आप क्लियरली अगर आप इस ग्राफ को ड्रा कर लें यूजिंग प्रॉपर dimension, proper measurements of this 1, 2 and so on, so you will get a graph, a graph of a parabola. So मैं ये कह सकता हूँ कि the graph of a quadratic equation is basically parabola. अच्छा, अब इसको पढ़ने के बाद देखते हैं इसके uses and applications. So we know that as I have already plotted the graph of
a quadratic equation, so we get a parabola. तो हम कोई भी पैराबोलिक शेप हो किसी भी फील्ड में, किसी भी क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए, कोई भी आपके पास प्रॉब्लम हो जो कि उसका प्लॉट जो है पैराबोलिक बन रहा हो, तो वी विल यूज़ quadratic equations to design any module or any appliance who is basically follow this parabolic path or this parabolic graph. तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करके उसको डिज़ाइन करेंगे, या उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं वो देता हूँ। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन अगर एक, फॉर एग्जांपल आप किसी बॉल को किक करते हो तो वो this ball will follow this path. So the equation of the projectile motion, the length followed by projectile motion, या the path followed by a projectile motion, या the time taken by a body during projectile motion, ऑल इसके रिलेटेड जितने भी आपके पास प्रॉब्लम आएंगे उसका जो इक्वेशन बनेगा एंड वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है। सेकेंडली मैं ये कह सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एरिया है, मैं फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्क्वायर। अब इस स्क्वायर का एरिया मैंने कैलकुलेट करना है। इफ दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, तो द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर एंड दिस इज नाउ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसी तरह हम फिज़िक्स में, इंजीनियरिंग में डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एंड सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करते हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक ब्रिज लेता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज़ अ ब्रिज। अब ब्रिज का एक केबल है, ब्रिज के साथ नॉर्मली केबल होते हैं। तो उस ब्रिज का जो केबल है वो इस स्टाइल में होगा। तो दिस इज़ बेसिकली पैराबोलिक ग्राफ और पैराबोलिक स्टाइल। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिज और द केबल अगर हम डिज़ाइन करेंगे तो हम किस इक्वेशन के थ्रू हम इसको डिज़ाइन करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम किसी सर्किट को स्टडी करेंगे जिसमें रेजिस्टर होगा, इंडक्टर होगा या कैपेसिटर होगा, आरएलसी सर्किट, या इनमें से कोई दो होंगे, तो हम उस सर्किट को, उसके सॉल्यूशन को या उस सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूज़ करेंगे। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एप्लीकेशन जो है वो बिज़नेस में भी काफ़ी ज़्यादा है। बहुत से ऐसे फील्ड्स हैं लाइफ में, तकरीबन जितने भी हम फील्ड हैं उसमें अगर किसी चीज़ को हम डिज़ाइन करते हैं या किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हम
सॉल्व करते हैं तो अगर उसका ग्राफ जो प्रॉब्लम है वो उसका ग्राफ अगर ये बन रहा है पैराबोलिक ग्राफ, तो हम उसको किस इक्वेशन के थ्रू स्टडी करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू हम इसको उसकी डिज़ाइनिंग भी करेंगे, उसको सॉल्व भी करेंगे। हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि ये जो सिस्टम है जो हमने डिज़ाइन किया है वो किन पॉइंट्स पे अनस्टेबल है। तो उसकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमने फर्दर फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसके सलूशन को फाइंड करना होगा। फिर उसके सलूशन को फाइंड करने के बाद हम कह सकेंगे कि at which points the equation is basically unstable, या the system is basically unstable। तो उन अनस्टेबिलिटी पॉइंट्स को डिफाइन करने के बाद हमने दोबारा स्पेसिफिक रूल्स, स्पेसिफिक मेथडोलॉजीज़ को यूज़ करके उस इक्वेशन को और उस सिस्टम को हम स्टेबल बना सकते हैं। तो दिस आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस यूजेस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अब एक स्पेसिफिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। उन मेथड्स को वन बाय वन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।